टेक्नोलॉजी और थिएटर में नाम हम बनाएंगे, योगा अपनाएंगे, मिलके अपनी राह बनाएंगे, विद्या एजुकेशन से सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जय जूनियर, जय जूनियर, जय जूनियर, जय जूनियर, जय जूनियर, जय जूनियर। Children are our future, and if we don't take care of them, we aren't taking care of our future. Healthy children are more likely to turn into healthy adults. It's our responsibility to provide them with essential needs. Hi friends, I'm Priyal Kumar. And I'm Saiba Sangroya. Welcome back to your favorite show, Jazz Junior. जय जूनियर। मोटापे से बचने के लिए और उसे ठीक करने के लिए सही खान-पान एंड एक्सरसाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है। Yes, Di, you're absolutely correct. इसका मतलब जब छोटे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने खान पान में सही चीजें नहीं रखते हैं, लेकिन मैं तो रखती हूँ दी, और हर दिन एक्सरसाइज और हर दिन इवनिंग वॉक के लिए भी जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी हैबिट है साहिबा। थैंक यू सो मच दी। अच्छा दी, एक्सरसाइज से याद आया, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट एरोबिक्स ही है ना, तो अब हम चलते हैं एरोबिक्स वर्ल्ड में और सिखा देते हैं हमारे सारे जूनियर फ्रेंड्स को एरोबिक्स के थ्रू इजी वर्कआउट स्टेप्स। You're absolutely right, Saiba. Regular activity not only increases your health but can also benefit your cardiorespiratory health. तो दी, चलते हैं एरोबिक्स वर्ल्ड में और बुला लेते हैं श्वेता दी एंड हमारे 2 जूनियर फ्रेंड्स को, आफरीन और अन्विता। जय जूनियर। Good morning, kids. Hope you are fit and fabulous. Always remember, motivation is what gets you started and habit is what keeps you going. So let's make workout our habit. Today our focus will be lower body. Our warm-up is running on the spot for a minute. First exercise which we will do today is walking forward in squat. This is a very good exercise for your core and leg strengthening. Second exercise which we will do today is leg rotation. This is a very good exercise for your flexor muscles. Third exercise which we will do today is touching the toe while going down and keeping our another leg straight. This is a great workout for your glutes and hamstrings. Fourth exercise which we will do today is fly jack. It is very good for your cardio. As I always tell you, please do all these exercises in sets and minimum of 3 sets to get the best results. Let's cool down.
Thank you so much for staying with us. See you next week. Till then, be active, be awesome. थैंक यू श्वेता दी, अफरीन एंड अनविता, इतने इजी स्टेप्स के साथ हमारे को एक्सरसाइज सिखाने के लिए। Thank you so much, Shweta Di, and our 2 junior friends, Afreen और Anvita. Exercise not only helps your physical development but can also increase brain functions for children. Yes, Di, you're right. We must exercise regularly. बच्चों में मोटापे का कारण उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ उनका खान पान और बहुत कम एक्सरसाइज की वजह है। वह अपना ज़्यादातर समय फ़ोन और टीवी के सामने बिताते हैं, जिनकी वजह से उनकी उम्र और आकार के हिसाब से उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज का टॉपिक है चाइल्ड ओबेसिटी। तो इसी पर बात करने के लिए बुला लेते हैं अपने एक्सपर्ट को और देखते हैं कि चाइल्ड में एक्चुअली चाइल्ड ओबेसिटी क्यों होता है। So let's welcome our expert Dr. Himika Chawla, consultant endocrinology and diabetes at the PSRI hospital. Namaskar. Welcome, ma'am. Welcome to our show, ma'am. Thank you. Please have a seat. Thank you. Let's also welcome our junior friend Kashika S. Murthy. She is a gold medalist in badminton and swimming, also while being a horse rider. Welcome to our show. Please have a seat. तो शो को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म। So, ma'am, I have a question for you. What are the major reasons for child obesity? So, as you've seen in the film also, the reasons are basically you have an imbalance of energy intake and energy expenditure. जितनी calories हम खा रहे हैं उतनी हम expend या जो है उसको utilize नहीं कर रहे हैं, तो it is a positive calorie balance जिससे fat mass हमारी body में accumulate करने लगता है। तो कारण इसके basically गलत lifestyle है, wrong lifestyle। तो diet is of course very important. Increasingly children are relying on fast foods, processed foods, मैदे का content ज़्यादा है, high fat foods, then sugary drinks, beverages and desserts. ये बहुत ज़्यादा डाइट में प्रेफर किए जा रहे हैं. दे आर रेडी टू ईट एंड यू नो ऑफ कोर्स पीपल आर डेवलपिंग एंड चिल्ड्रन स्पेशली जो है दे आर डेवलपिंग मोर टेस्ट फॉर दीज काइंड ऑफ फूड्स. अब नॉट ओनली दे आर हाई ऑन कैलोरीज एंड फैट, दे आर नॉट हैविंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दे आर नॉट हैविंग द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, तो बैलेंस जो है खाने का वो बिगड़ जाता है. Secondly, exercise, lack of exercise, as we are stressing so much on it. Regular exercise, outdoor activities, any kind of outdoor sports जो है अगर बच्चे regularly करें तो they can deal with this obesity. Yes, so lack of exercise and increasing use of these gadgets जो है mobiles and TVs and video games, तो बहुत ज़्यादा screen time जो है and increasingly sedentary lifestyle जो है ये contribute कर रहे हैं मोटापे को. ये दो main reason है. Of course apart from this lack of sleep, समय पे ना सोना, late night तक उठे रहना and you know lot of stress, बचपन से ही आजकल schools हैं, exams हैं, so stress भी बहुत चीज़ों का है. तो ये सारी चीज़ों का interplay है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है. तो आज हमारे साथ जुड़े हैं माउंट सेंट मेरी स्कूल के बच्चे दिल्ली कैंट. तो आज वो हमारे डॉक्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. My question is, how does obesity affect a child's future? So obesity is
something which not only affects the physical health but also the mental health and psychological health. So physical health पे देखें तो जितनी metabolic diseases हैं, type 2 diabetes, high levels of cholesterol, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये काफ़ी कॉमन मैनिफेस्टेशंस हैं मोटापे के, जो कि टाइम एंड अगेन होंगे ही अगर हम मोटापे को कंट्रोल नहीं करते हैं. इसके अलावा मोटापे से जो है जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होने लगते हैं वेट ज़्यादा होने के कारण, और बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं आजकल फैटी लिवर के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं बच्चों में. अब ये डायबिटीज़, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें आज से 20 साल पहले हम बच्चों में नहीं देखते थे. तो अब जैसे कि पिछले 20-30 सालों में इंक्रीजिंगली हमारे पास बहुत सारे यंग बच्चे आ रहे हैं, 10 साल के, 12 साल के, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, फैटी लिवर है. तो ये सब आपके फ़िज़िकल हेल्थ में इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मोटापे के. और ऑल्सो टू मेंशन, हम लोग अर्ली प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस भी देख रहे हैं. तो इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ेज़ इज़ ऑल्सो सीन अगर मोटापा बच्चों में ज़्यादा होता है. और ये भी है कि जनरली जो बच्चे बचपन में जो ओबेसिटी है वो अडल्टहुड में प्रोग्रेस करती है. जो बच्चे बचपन से ही मोटे हैं जनरली वो अडल्ट्स में भी उनमें ओबेसिटी रहती है, और ये सारी बीमारियां फिर होने का रिस्क रहता है. Can we please have the next question? Ma'am, I would like to know if there are any genetic factors which make individuals more prone to obesity. हेरिटेबिलिटी इज़ देयर. BMI, दैट इज़ द बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम असेस करते हैं कि किसी बच्चे को मोटापा है या नहीं है. ये बॉडी मास इंडेक्स जो है लगभग 25 से 40% तक इसमें हेरिटेबिलिटी हो सकती है, जिसका मतलब है कि अगर पेरेंट्स का BMI कम है या ज़्यादा है तो बच्चों का भी BMI कम या ज़्यादा होने का चांस होता है. बट रिमेंबर इट इज़ अराउंड 25 से 40%. सो स्टिल 60 to 75% डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, हमारे डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे. ये जो है ज़्यादा डिटर्मिन करता है कि अल्टीमेटली ओबेसिटी होगी या नहीं. बट येस, हेरिटेबिलिटी इज़ देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं ओबेसिटी के. कुछ म्यूटेशंस होती हैं जिसके चलते बच्चे बचपन से ही जो है ओबेसिटी होने लगता है उनको, और ये एक इट्स अ डिजीज़. So these causes are there, but they are less than 5 to 10% of cases of obesity, and mostly it's a lifestyle disease, and we must focus on rectifying that. So काशिका, आज आप हमारे शो में आई हैं एंड आपने इतने सारे मेडल्स पहन रखे हैं, तो आप अपने मेडल्स के बारे में कुछ बता सकती हैं हमें? Actually, few of them are from states and a few of them are from zonals, and rest of all of them are from inter schools and inter houses, and especially my school, it supports my badminton and swimming career a lot, and especially with the morning practices. It starts at around 5:30 in the morning and until the school begins. I have 2 gold medals from the zonals tournament, 3 silvers from swimming, and a bronze from state level doubles badminton, and pretty much a lot more, but I don't actually remember the whole. That's very impressive. Thank you. और काशिका, हमें पता चला है कि आप हॉर्स राइडिंग भी करती हैं, तो आप Yeah. उसके बारे में कुछ बता सकती हैं हमें? Yes, sure. Horse riding is a sport in which involves an animal, a living being which you cannot fully control. So with it is all about your hands and legs, so that you can have a good grip. Even if you fall, it can lead to serious injuries or some minor ones. Like for once, when I fell from the first time from a horse, my finger kind of permanently bent a bit. Oh, really? Yeah. Thank you. तो ले लेते हैं बच्चों से उनका अगला सवाल. How does obesity influence a child's self-esteem and body image? कई बार हम देखते हैं कि बच्चे दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, एंड समटाइम्स दे मे नॉट अंडरस्टैंड द अदर चाइल्ड्स sentiments. तो दैट इज़ नॉट इंटेंशनल, बट दैट हैपन्स. एंड जो बच्चे मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, एक सेंस ऑफ नेगेटिव परसेप्शन ऑफ सेल्फ आने लगता है. ऐसे बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आने लगता है. दे स्टार्ट फीलिंग लोनली, दे कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. सो मैनी टाइम्स वी सी दैट दीज चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू डिप्रेशन ऑल्सो, बिकॉज दे आर फीलिंग सो नेगेटिव अबाउट देमसेल्फ, एंड सिंस दे आर नॉट एबल टू गेट अ वेरी गुड सोशल एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट. ओबेसिटी को टैकल करने के लिए हम पॉजिटिवली पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली डॉक्टर्स का सपोर्ट लें.
because many of these children, they have psychological issues also because of the obesity. Can we please have the next question? What impact does physical activity have on childhood obesity? Exercise is an excellent thing, and जैसे हम बात करें lack of exercise, व्यायाम अपनी daily routine में जो बच्चे आजकल include नहीं कर रहे, that is increasingly contributing to obesity. One thing that I would like to mention here is that exercise does not mean only walking or running or aerobic exercises. Any form of sports can be exercise. तो बच्चे जब हम स्पोर्ट्स में एंगेज करते हैं वो ज़्यादा देयर इज़ अ इंक्रीज पॉसिबिलिटी दैट दे विल कंटिन्यू दैट. तो अगर हम बच्चे को बोलेंगे जाके आप 1 घंटा एक्सरसाइज करो या आप 1 घंटा वॉकिंग करो, ही माइट गेट बोर्ड आफ्टर 10 days. बट अगर उसकी जगह वी इनरोल हिम इन सम फुटबॉल क्लासेस और सम स्विमिंग और सम बास्केटबॉल और एनी अदर फॉर्म ऑफ स्पोर्ट दैट द चाइल्ड लाइक्स, लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं इन एडिशन टू द रेगुलर एक्सरसाइजेज, दे विल हेल्प द चाइल्ड टू वर्क आउट फॉर अ गुड 30 to 45 minutes. द आइडिया इज़ कि बच्चा थोड़ा सा स्वेट आउट करे, द हार्ट बीट increases a little. So a moderate intensity workout is what we require. It is not just exercise, it can be any form of sports that the child can regularly include in his schedule. And exercise बहुत help करती है weight shed off करने में. और जैसे कि मैंने बोला, एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर का बैलेंस लूज़ कर रहे हैं हम, तो हमें खाना भी सही है और हमें एक्सरसाइज करके कैलोरीज को कंज्यूम भी करना है ताकि हम फिट रह पाएँ. क्या आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है डॉक्टर हिमिका से? Ma'am, I was wondering, what is non-alcoholic fatty liver disease and how is it related to childhood obesity? When you have fat accumulation in the liver and increasingly जब fat liver में accumulate करने लगता है तो liver का जो अपना function है वो lose करने लगता है. Surprisingly, in today's time, earlier alcohol was the number one cause of liver failure in our country, but आज की डेट में diabetes, obesity and metabolic syndrome is the number one cause of liver failure. So ultimately when a lot of portion of the liver is replaced by fat, उसका function धीरे धीरे कम होता है and liver starts going into fibrosis and liver failure on a long term. Relation with obesity is, see, मोटापा या obesity जो है that produces a state of insulin resistance in the body. Now insulin resistance is a term for the insulin which is an important component which drives, see हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है for utilization because it's a source of energy. Insulin pushes this glucose into the cells for energy utilization. जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता, तो सेल्स इस ग्लूकोज को नहीं यूटिलाइज कर पाते, वो बॉडी में एक्यूमुलेट करने लगते हैं, प्लस बहुत सारे फैटी एसिड्स और फैटी मॉलिक्यूल्स भी बॉडी में जमा होने लगते हैं, तो ये सारे जाके लिवर में डिपॉजिट होने लगते हैं. तो कॉजल एसोसिएशन है, ओबेसिटी ड्राइव्स इंसुलिन रेजिस्टेंस विच कॉजेज नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़. तो अगेन ये पूरा एक मेटाबॉलिक स्पेक्ट्रम है और ओबेसिटी से जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी उसी का एक पार्ट है. Ma'am, so how can we tackle the problem of obesity in children? The problem has to be tackled by 3-4 solutions are there. First thing is that diet has to be made healthy. अब diet healthy करने के लिए we cannot just tell children कि आप junk food बंद कर दीजिए, सब्जियां खाना शुरू कर दो, दालें खाना शुरू कर दो. The important thing is availability should be there. बच्चों को healthy foods का access होना चाहिए in a manner that they would like to eat. Second thing, the entire family has to practice healthy eating habits. We cannot just tell the child to eat healthy. If everybody eats healthy on the table, बच्चा भी healthy eat करेगा. तो सारी family को healthy eating choices करनी है. Thirdly, it is very important to reintroduce things to children again and again. बच्चा एक बार में शायद एक healthy food को accept नहीं करते. बच्चे कहते हैं, लोग कहते हैं हमारे बच्चा लौकी की सब्ज़ी नहीं खाता और तोरी की सब्ज़ी नहीं खाता, whatever. So introduce the foods again and again. अगर हम बच्चे को बार बार देंगे, ultimately he will develop a liking for those foods. तो हमारे को डाइट में प्रोटीन्स, फाइबर्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे से बनी चीज़ें, शुगरी ब्रेवरेजेस, शुगरी फूड्स, डेजर्ट्स, इनका इंटेक मिनिमाइज़ करना है.
फैटी फूड्स का इंटेक मिनिमाइज़ करना है, फ्राइड फूड्स का इंटेक मिनिमाइज़ करना है। सेकेंडली रेगुलर एक्सरसाइजेज, हम अगेन एंड अगेन बोल रहे हैं, आधे से पौना घंटा हर बच्चे को रेगुलरली कुछ भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट करना है। थर्डली स्लीपिंग ऑन टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, बच्चों को समय से सोना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ वो भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अगर बच्चे लेट नाइट तक उठे रहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और मोटापा भी बढ़ता है। एंड फोर्थली बच्चों को स्ट्रेस लेवल्स भी मैनेज करने आने चाहिए। सो वी एज पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड काउंसलर्स एट स्कूल must address the psychological aspect of things and address the stress and anxiety that children are facing in today's time. I think if we do all of this, we will be able to prevent obesity and manage most patients with obesity. So कशिका, आपने इतने सारे स्पोर्ट्स मेडल जीते हैं, आपको इनके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? My inspiration was my mom. She was in army by the time I was born. And she left army, but she was a state badminton player. So I was really inspired by her, and after a few years, I saw PV Sindhu. So she was my, so I decided like I wanted to be her. So that's why I put all my dedication in badminton and swimming, and I'm still in the pursuit for my dream. Wow, that's so inspiring. Thank you so much, Dr. Himika, for joining us. So I also thank Doordarshan for giving me this opportunity and all the kids out here who've raised very relevant questions for us. Thank you so much, Kashika, for joining us in our show and motivating us and our junior friends. Thank you very much for having me, and it was a pleasure to come here. It was a pleasure to have you guys here. तो दी, आज आप हमारे जूनियर फ्रेंड्स को पीकू की स्टोरीज नहीं सुनाओगे? ओह हाँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, मगर इसके पहले अपने आप को फिट रखना भी तो जरूरी है। पीकू, आज हम कहाँ जा रहे हैं? साहिबा, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ। हाँ, मैं भी यही पूछ रही हूँ। रियल दी, साहिबा तो वेट भी नहीं कर सकती। दी, क्या आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ पीकू, आप हमेशा की तरह हमें पानी से रिलेटेड कहानी सुनाने लेके जा रही हो ना? अच्छा दी, आपको भी पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ साहिबा, मुझे तो पता है। साहिबा, क्या तुमने कुछ नियम बनाए हैं? नियम? कौन से नियम? पानी को बचाने के नियम। अरे पीकू, वो कौन बनाता है? ये क्या बात हुई साहिबा? पीकू सही तो बोल रही है, हम सबको नियम फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल सही दी, मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, पानी को बचाने के रूल्स है ना पीकू? इसीलिए तो कहते हैं पानी का सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग ना करो। राइट सेड दी, तो आज से ये नियम बनाओ, सुबह शाम को पानी बचाओ। आज हम जानेंगे कि हमारी और आपकी प्यारी राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों पर पानी की कमी के कारण क्या प्रभाव डलता है। लेकिन पहले हमें समय में कुछ पीछे जाने की आवश्यकता होगी। हमारे शहर में इस तरह की पानी की कमी क्यों है मैम? पानी की कमी बढ़ गई है क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि, भूजल का अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण इसका एक अहम कारण है। हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखना होगा और वर्तमान में स्थायी रूप से उसे लागू करना होगा ताकि हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित बना सके, अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह कौन सी जगह है मैम? यह एक स्टेप वेल या बावली है। बावली उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक समय दिल्ली में 100 स्टेप वेल थे। इतने सारे, हमने तो एक भी नहीं देखा। फिर अब उनका क्या हुआ? अब केवल कुछ ही बचे हैं। एक ऐसे ही है लाल किले की बावड़ी। लाल किले की बावली 14वीं सदी के तुगलक काल में बनाई गई थी। मुगल सम्राट शाहजहां ने जब लाल किले का निर्माण किया था तो उन्होंने बावली का पुनः निर्माण करवाया था और मरम्मत करवाई थी।
ये सचमुच अद्भुत है। उस समय पानी का संरक्षण कैसे किया होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर आप हमारे इतिहास से सीख सकते हैं और आज के दिन ऐसी प्राचीन प्रथाओं को फिर से लागू कर सकते हैं, जैसे कि कुएं या बावड़ी, और हर नए मकान में वर्षा जल को इकट्ठा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो सीखे हैं उसका उपयोग करके कुछ बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। हम अपने स्कूल से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आज की स्टोरी कितनी अच्छी थी ना, मुझे तो बहुत मजा आया। सही बात है साहिबा, पीकू हमेशा ही इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाती है। और वाटर को सेव करने के रूल्स भी तो सिखाए, और पानी का सदुपयोग और उसे बचाने के तरीके भी सिखाए। तो दी ले लेते हैं इस वीक का ईमेल। आज का ईमेल विभोर शुक्ला डीपीएस सुशांत लोग ने सेंड किया है। Dear Team Doordarshan, it was a great experience with you all. Actually, it was my first time on national TV. Loved the coordination you all had. It was one of the best days of my life. I learned how to be patient and a lot of more life lessons. It was possible because of all of you. Kudos to you. Thank you for making my day special. Thanks and regards. Thank you so much for this lovely email. Now it's time to take your leave. We'll meet you next week at the same time, only on your favorite show, Just Junior. For any feedback, please send us a mail on ddjustjunior@gmail.com. और हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करना मत भूलिएगा। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye.